Assalamu alaikum. Going to the part 2 of D and F block elements where we will discuss some of the general properties of transition elements. कुछ physical properties का discussion करेंगे first. Now transition elements, they are electropositive in nature. Means transition elements का ionization energy compare करेंगे S block element से थोड़ा ज़्यादा रहेगा और P block element से कम रहेगा. They are intermediate of that. S block elements are highly electropositive. They easily lose the electron. They show high metallic character. Whereas transition elements also they are metals, but their electropositive character is less compared to S block elements. लेकिन कुछ और भी properties हैं जो S block elements से D block element के थोड़ा अलग रहते हैं, जैसे कि metallic character S block elements का हालांकि ज़्यादा है लेकिन D block elements में कम रहेगा, लेकिन हार्डनेस जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा है, राइट. सो एनी हाउ you can call transition elements or also they are electropositive in nature. Their ionization energy is low compared to P block but higher compared to S block. In general we can say they are electropositive. They too lose electrons but not like that of S block elements, but they show all metallic properties like luster, shining property होती है, हाई डेंसिटी, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, हार्ड होते हैं. हार्ड होने की वजह यह है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो एटॉमिक अरेंजमेंट है बहुत ही कॉम्पैक्ट है. दैट्स व्हाई दे आर हैविंग वेरी हाई डेंसिटी एंड दे आर हैविंग टेंसाइल स्ट्रेंथ. whenever you are compressing them or putting up some pressure, they exert some tension. They are malleable and ductile, that is you can convert them into sheets or you can draw them into wires. Malleability and ductility एक important property होती है metals की. Malleability माने ये metals को हम क्या कर सकते हैं, हैमर करके बीट करके शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. डक्टिलिटी के माने एक मेटल को आप हीट करके उसको आप एक वायर का शेप, एक वायर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो ये दो प्रॉपर्टीज खासकर मेटल्स में होते हैं because of the metallic bond. So they are malleable and ductile. Due to presence of free electrons, they are electrical and thermal conductors. They show electrical conductivity and thermal conductivity. ये कुछ physical properties हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के because they show metallic character. When we say metallic character, जब कोई एलिमेंट metallic character exhibit करता है तो चार important property आपको याद रखना है. They show luster, they are good conductors of heat and electricity, they are malleable and ductile, and they are sonorous also, means when they are beaten they produce sound. तो ये properties ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट करते हैं. अब जैसे कि लस्टर की बात करते हैं, यहाँ कुछ इमेजेस हैं हम देख सकते हैं 3D सीरीज एलिमेंट्स के. जब आप इन्हें अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके ओर्स में से आप प्योर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उनका अपीयरेंस प्योर फॉर्म में इस तरह होता है. ये लस्टर कंटिन्यूस एयर के साथ एक्सपोजर से चले जाएगा, दे गेट टार्निश्ड, यानी कि दे लूज दिस शाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन. प्योर फॉर्म में अगर देखेंगे तो इनका अपीयरेंस इस तरह होता है. ये स्कैंडियम है, ये टिटेनियम है. दे आर हैविंग शाइनिंग प्रॉपर्टी, दैट इज वी कॉल इट एज दिस एज मेटालिक लस्टर. मेटालिक लस्टर का रीज़न ये है कि whenever light falls on them, electrons are ejected out from their surfaces. यानी कि जैसा हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करते हैं उसी तरह यहाँ पे भी ड्यू टू द ejection of the electrons from the surface they show shining property. It depends on how much the intensity of the light is focused. So in general all metals they show this metallic luster because of the metallic bond. स्कैंडियम और टिटेनियम है, ये वनाडियम है और ये क्रोमियम. all are having silvery white appearance except few which will be having yellow to brownish color appearance. Manganese and this is iron. आयरन प्योर फॉर्म में इस तरह होता है. यूजुअली हम जो आयरन देखते हैं पूरा ब्राउनिश टाइप रहता है. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रस्ट फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस. बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्योरेस्ट आयरन, जिसको हम रॉट आयरन बोलते हैं, उसका अपीयरेंस इस तरह आता है.
cobalt, nickel, copper, brownish appearance, copper, and this is zinc, right? So almost all metals, let it be in S block, D block, or in F block, many of the metals they are having silvery white appearance, except few which will have brown or yellow color appearance, that is of gold. So this metallic luster is due to their metallic bond present between the atoms present in that metal. When we say about compact arrangement of particles, they are hard, and when you go with the X-ray diffraction, अगर X-ray diffraction के मुताबिक अगर उनका internal geometry भी देखेंगे, ये metals जितने भी हैं metallic solids कैटेगरी में आते हैं. ऑलरेडी हम solid state चैप्टर में पढ़े हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: आयोनिक, कोवालेंट, मेटालिक एंड मॉलिक्यूलर. So these metals they belong to metallic solids category. They are crystalline in nature and they show different crystal structures. Geometrical structures अलग अलग होते हैं, जैसा कि हम अलग अलग टाइप के geometrical arrangements पढ़े हैं: simple cubic, body centered cubic, face centered cubic, hexagonal closed packed structures, cubic closed packed structures. तो totally 7 crystal systems और totally 14 braville lattices, crystal lattices totally 14 होते हैं. ये elements भी कोई ना कोई एक टाइप से मैच हो जाते हैं. And now here when you talk about the transition elements, इनका नॉर्मल टेम्परेचर्स पर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, कॉमन जो हम डिस्कस करें हैं, BCC, HCP और CCP, इन्हीं फॉर्म में रहता है. And we have studied in solid state also that with a change in temperature crystal structure also changes. एक BCC FCC में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप टेम्परेचर चेंजेस करके, या फिर एक FCC को आप BCC में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर. इन जनरल नॉर्मल टेम्परेचर्स पे ये पूरे मेटल्स कोई एक टाइप के अरेंजमेंट से नॉर्मल टेम्परेचर पे रहते हैं, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और मैंगनीज. इनके ज्योमेट्रीज अनप्रेडिक्टेबल है. their geometries are very complex and we call their geometries are unpredictable or typical crystal structures. यानी कि कंफर्म नहीं बोल सकते इनकी का ज्योमेट्री BCC है या FCC है या फिर CCP है. so we can't say them because of their unpredictable or typical structures. लेकिन बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके क्रिस्टल्स अगर चेक करेंगे कोई ना कोई एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म से मैच हो जाते हैं, जैसे कि ये स्कैंडियम ग्रुप यानी कि थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप. थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स दे शो HCP अरेंजमेंट. मेजर फॉर्म जो होता है दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर. ब्रैकेट में जो दिया गया है ये भी पॉसिबिलिटी है. दे कैन शो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑल्सो, but the main thing is they all show hexagonal closed pack structure. Group number 3, group number 4, group number 7 and group number 8, 3, 4, 7, 8, they can show HCP arrangement of particles or atoms. 3, 4, 7, 8 इनमें आता है HCP arrangement. 5 or 6 body centered cubic arrangement: vanadium, niobium, tantalum, chromium, molybdenum, tungsten. They are having BCC arrangement of their atoms, that is 5 and 6 BCC. अब बचते हैं अपने पास ये 9, 10, 11. 9, 10, 11 का होता है CCP अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज पैकिंग. Means they show FCC structure. CCP or FCC are one and the same, so they show CCP type of geometries. Remember, these geometries may change based on the temperature and pressure conditions. At normal temperature and pressure, these are the common geometrical structures found in all these metals. So all these
metals belong to metallic solids category. Whereas when you talk about the 12th group, this is nothing but we call them as the typical geometrical structures. Zinc, cadmium, mercury, even when you take manganese, they are all having typical geometrical structures, means unpredictable geometrical structures. That's why we have represented over here as X. Now all transition metals, they are very hard, they are very low volatile natured elements, यानी कि evaporate नहीं होते हैं, they are less volatile or non volatile, very high melting and boiling points, except zinc, cadmium and mercury, which are very soft and possess low melting and boiling points. अब जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हैं, ग्रुप नंबर 3 से 11 तक जितने भी है, हार्ड है, लेस वॉलाटाइल है और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा ही है, एक्सेप्ट ये 3 एलिमेंट्स का जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है और अपीयरेंस भी सॉफ्ट मेटल जैसा होता है, जैसे कि जिंक, इन तीनों में सबसे हार्ड जिंक है, थोड़ा सॉफ्ट कैडमियम है और मर्क्यूरी सबसे सॉफ्ट है, यानी कि लिक्विड मेटल. मर्क्यूरी इज द ओनली एलिमेंट in the transition series or in the transition group which is existing in liquid state, or in the periodic table the only metal exists in liquid form at room temperature is mercury. दूसरे भी एलिमेंट्स है जैसे कि गैलियम है या सीजियम है या रुबीडियम है, ये भी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं लेकिन थोड़ा हाई टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन एट रूम टेम्परेचर मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड मेटल, क्योंकि इनमें बॉन्ड वीक होते जाता है, द मेटालिक बॉन्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर, और व्हेन यू टॉक अबाउट द कोवालेंट नेचर आल्सो दैट बिकम्स वेरी वेरी पुअर. इन मेटल्स में कोवालेंट नेचर का भी डिस्कशन होगा और आयोनिक मेटालिक बॉन्ड का भी डिस्कशन होगा. जितने भी ये प्रॉपर्टीज है, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, electrical and thermal conductivity, they are all luster, they are all based on metallic bonding. Whereas when you talk about hardness and density, that is all because of the covalent nature. हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं होते हैं, लेकिन इनमें जो डी ऑर्बिटाल होता है, इनका जो डी ऑर्बिटाल रहता है, इसका जो एक्सपोजर, इसका जो ओरिएंटेशन होता है, सरकमफरेंस फेरी पे रहता है. इट विल बी फोकस्ड और द it is uh, available at the periphery of the atom, that is outermost shell के करीब रहता है, जिससे क्या हो जाता है, ये नेबरिंग एटम्स के डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो सकते हैं. इसको हम बोलते हैं डी डी ओवरलैपिंग. वी कैन कॉल इट एज डी डी ओवरलैपिंग. अब ये ओवरलैपिंग, क्योंकि कोवालेंट बॉन्ड में हम ओवरलैपिंग ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं, जब डी ऑर्बिटल या कोई ऑर्बिटल जब दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है. अब जैसे कि एग्जांपल, सपोज ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ओवरलैप होके कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी इनका जो डी ऑर्बिटल होता है, डबल डम्बल शेप, इनके डबल डम्बल शेप लोब्स भी जो है नेबरिंग एटम के लोब्स, ऑर्बिटल के लोब्स के साथ ओवरलैप होते हैं और बॉन्ड कोवालेंट नेचर एग्जिबिट करते हैं. अब ये ओवरलैपिंग होने से इनका हार्डनेस बढ़ते जाता है. जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा और वो पर्टिकुलर मेटल हार्ड होते जाएगा. लेकिन ओवरलैप होने के लिए ज़रूरी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है. द डी ऑर्बिटल शुड कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो हम देख सकते हैं ट्रांजिशन सीरीज में 3D1, 3D2, 3D3 इस तरह कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते जाता है. बाद में 3D6, 7, 8, 9 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि डी ऑर्बिटल फिलअप होते रहता है, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5 तक बढ़ जाते हैं. बाद में उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स पेयर होना स्टार्ट होते हैं. हंट्स रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, बाद में पेयर होते जाते हैं. पेयरिंग के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं. इस वजह से जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा और बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा और हार्डनेस भी उतना ही ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे भी वही हाल है.
Hardness, high melting point and boiling point is due to the involvement of more number of N-1d and Ns electrons in the interatomic metallic bonding, or you can call it as covalent bonding also, because overlapping of orbitals is going to take place. तो d ऑर्बिटल में जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ओके, पूरे इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और ns इलेक्ट्रॉन्स, s ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन, जब ये अवेलेबल रहेंगे ये ओवरलैप होके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। इस तरह हम यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सीरीज 3D सीरीज लेंगे, पहले आता है स्कैंडियम 3D1, टिटेनियम 3D2, वैनेडियम 3D3, क्रोमियम 3D5। यहाँ तक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, एस ऑर्बिटल में 2 हैं ही, डी ऑर्बिटल में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर। अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लेने से ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, ओवरलैपिंग ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा और ये मेटल भी हार्ड हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे एनामलस नेचर है मैंगनीज का, मैंगनीज में भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में आते हैं और एस में 2 रहते हैं, लेकिन इसके टिपिकल स्ट्रक्चर की वजह से इसका हार्डनेस कम हो रहता है, बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग ए परफेक्ट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसका हार्डनेस कम है। This is again exceptional case, even though it is having more number of unpaired electrons because of their typical structure. It comes for manganese, technetium. So these two, they are having low hardness because of their typical structures. फिर से यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हालांकि 3D6 है, क्रोमियम से ज़्यादा है, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4 है, इस वजह से हार्डनेस थोड़ा कम रहेगा, ये कम कम होते जाता है। फाइनली व्हेन यू कम टू 12th ग्रुप, दे आर वेरी सॉफ्ट, बिकॉज 12th ग्रुप में 3D10 होता है कॉन्फ़िगरेशन, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। अब डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद ये ओवरलैप नहीं होंगे, ओवरलैपिंग नहीं हो गया तो बॉन्ड भी वीक रहेगा, बॉन्ड जब वीक रहेगा ये एलिमेंट्स हार्ड नहीं रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। इस वजह से जिंक सॉफ्ट है, उससे सॉफ्ट कैडमियम हो जाता है और उससे सॉफ्ट मर्क्यूरी हो जाता है। सो व्हेन यू मूव, यहाँ तक तो हार्ड है, इसके बाद एक्सटेंड और करेंगे तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी आ जाएगा, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आएंगे, दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट कंपेयर टू दीज एलिमेंट्स बिकॉज देयर डी ओवरलैपिंग विल नॉट टेक प्लेस। इन पूरे एलिमेंट्स में डी ओवरलैपिंग होता है, मैक्सिमम डी ओवरलैपिंग यहाँ पे होगा ये 3 एलिमेंट्स में, और वेरी लीस्ट जो होता है सूडो या फिर नई के बराबर जो होता है सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल वहाँ पे completely filled रहता है। दैट इज द रीजन जिंक, cadmium and mercury are soft and they have very low melting and boiling points. Why they are soft and have low melting and boiling point? The reason is because of the completely filled d orbital where dd overlapping, dd overlapping मतलब एक d orbital दूसरे d orbital के ऊपर overlap होना, उसको हम बोलते हैं dd overlapping does not take place in these elements. That's why they are soft. Mercury is a liquid metal. Why? Because it is having weak metallic bond due to absence of dd overlapping. या मेन रीजन दे सकते हैं हम, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ dd overlapping it is soft and it exists in liquid form. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहे तो हार्डनेस ज़्यादा रहेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहे तो वो मेटल सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इन हर एक सीरीज में हार्डनेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बढ़ जाता है और बाद में कम होता है, क्यों? अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस देन दे आल्सो डिक्रीज, दैट्स व्हाई हार्डनेस इंक्रीजेस देन इट डिक्रीजेस। हर एक सीरीज में हम देख सकते हैं, यहाँ पे मोलिब्डेनम तक ज़्यादा हो गया फिर कम होता स्टार्ट हो गया, यहाँ पे टंगस्टन तक ज़्यादा हो गया फिर कम होते गया। सो हार्डनेस का रीज़न इज द प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गर या फिर हार्डनेस ज़्यादा सब क्या है? टंगस्टन फॉलोड बाय मोलिब्डेनम एंड क्रोमियम। सो इट इज़ द हार्डेस्ट, देन मोलिब्डेनम, देन क्रोमियम। हर एक सीरीज में, इस सीरीज में 3D सीरीज में क्रोमियम सबसे हार्ड है, सेकेंड नेक्स्ट 4D सीरीज में मोलिब्डेनम और 5D सीरीज में टंगस्टन। Manganese and technetium possess less melting point because of their typical structures.
or even though they have more number of unpaired electrons, because of the typical structure they are having less melting point. Enthalpy of atomization is very high, which increases to maximum in the middle of each series, which shows metallic bond is very strong. Enthalpy of atomization, it is the heat change that takes place when 1 mole of a substance is converted into its constituent atoms. 1 मोल ऑफ सॉलिड है, ये सॉलिड मेटल्स होते हैं, इनको आप इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में जब चेंज करेंगे, गैसियस एटम्स में जितनी भी हीट इस्तेमाल होगी उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स प्रेजेंट इन देम which increases to maximum and then it goes on decreases. नेक्स्ट लेते हैं एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज वेरिएशन। पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस, वी नो दैट it increases down the group due to increase in energy levels and it decreases across the period due to increase in effective nuclear charge. Now when you talk about transition elements, ये मिडल में आते हैं, इसका मतलब सबसे लार्जेस्ट साइज एलिमेंट्स एस ब्लॉक के सबसे लार्जेस्ट साइज एलिमेंट्स एस ब्लॉक के हैं और स्मॉलेस्ट हो जाते हैं पी ब्लॉक, बिकॉज साइज डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. So these transition metal, they are having atomic radius less than s block but greater than p block, that is it lies between s and p block elements. लेकिन यहाँ पे जनरली हम क्या लेते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन सीरीज, हर एक ट्रांजिशन सीरीज में अब देखेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज नहीं होता है, थोड़े इसमें वेरिएशंस आते हैं कुछ फैक्टर्स की वजह से, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अब डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एटॉमिक साइज का अगर वेरिएशन देखते हैं तो वेरिएशन को हम इस तरह याद रख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट से पहले साइज कम हो जाता है, बाद में ऑलमोस्ट कुछ एलिमेंट्स तक कांस्टेंट रहता है और बाद में ये इंक्रीज हो जाता है. अगर ये एक्स्ट्रा पार्ट में एस ब्लॉक के लिए लेता हूँ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर लार्जर, साइज कम हो जाएगा डी ब्लॉक में और उन्हीं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में थोड़ा साइज कांस्टेंट हो जाता है और बाद में फिर इंक्रीज हो जाता है. ऑलमोस्ट ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट के कार्ड के जैसा नज़र आता है. तो ये वेरिएशन याद रखो, साइज डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, देन इंक्रीजेस. ये वेरिएशन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में. Atomic size varies in transition elements in this manner. It decreases first, remains constant, and then increases. In a given transition elements, atomic radii decreases to the midway, with increase in atomic number, remains almost constant, and increases towards the end of series. जैसे कि एग्जाम्पल 3D सीरीज का ही लेते हैं, ये लेता हूँ मैं स्कैंडियम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. Atomic size or radius decreases from scandium to chromium. Chromium तक size कम होगा due to increase in effective nuclear charge and a very low shielding effect. Now, main reason why atomic radius is decreasing is due to increase in effective nuclear charge. ये भी हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं. साइज डिक्रीज होने की वजह ये होती है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो साइज कम हो जाता है. अब उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहता ही, हर एक एलिमेंट में रहता ही है, लेकिन उसको कम करने वाले या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंदर के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स. इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स दे प्रोटेक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और उस फेनोमेना को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट. दे प्रिवेंट द अट्रैक्टिव बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. इससे साइज बढ़ने के चांसेस रहते हैं. उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, दैट इज प्रोटेक्शन गिवन बाय
inner orbital electrons to the outermost electrons from the force of attraction of nucleus. We call it as shielding effect. अब ये shielding effect ज़्यादा कब रहता है? d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये हाफ फील्ड जब रहते हैं. अभी यहाँ पे स्कैंडियम में D1 है, कॉन्फ़िगरेशन अभी D1 है, अभी d ऑर्बिटल फिल होने में क्रोमियम में 5 हो जाता है, d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाता है, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट अभी कम है, अभी बढ़ रहा है. इट इज स्टिल अबाउट टू इंक्रीज, क्योंकि यहाँ से शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा. अब यहाँ स्कैंडियम, टिटानियम, वैनाडियम में शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है. तो शील्डिंग इफेक्ट कम रहने से न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ns इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. जब ये अट्रैक्ट करेगा तो डेफिनेटली साइज कम हो जाएगा. सो why size decreases from scandium to chromium is due to increase in effective nuclear charge and very low shielding effect. 1 mark के क्वेश्चन आ सकते हैं. Scandium to chromium size decreases. Why? Reason you have to give, due to increase in effective nuclear charge and very low shielding effect. उसके बाद क्रोमियम से कॉपर तक, यहां तक size remains almost constant due to increase in effective nuclear charge, but it is balanced by increase in shielding effect. क्रोमियम से कॉपर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. यहाँ भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा था, यहाँ पे भी बढ़ रहा है. यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज कम हो गया, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, लेकिन साइज कम नहीं हो रहा है, साइज कांस्टेंट रह रहा है. क्यों? वजह इसकी, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट अब ज़्यादा हो गया. यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम था, अब यहाँ पे D5, D6, D7, D10 तक, यानी कि d ऑर्बिटल ऑलमोस्ट हाफ फील्ड है और फील्ड हो चुका है और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है. शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने से ये न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसको कम कर देता है, बैलेंस कर लेता है, कंपनसेट करता है, जिससे साइज कम होने के बजाय ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है. सो हियर द रीजन इज व्हाई साइज रिमेन्स कांस्टेंट इज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बट इट इज बैलेंस्ड बाय इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से साइज कम होने के बजाय सेम रह जाता है. सो अगेन 1 mark question can be asked, why size remains constant, almost constant from chromium to copper? It is nothing but due to increase in effective nuclear charge, but it is balanced by increase in shielding effect. और एक यहाँ पे चेंजेस क्या होते हैं, कॉपर से जब आप जिंक को जाएंगे देर इज इंक्रीज इन साइज, हालांकि ENC बढ़ रहा है. अब शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे कम हो जाता है क्योंकि D10 हो गया. शील्डिंग इफेक्ट कंप्लीटली फिल्ड रहे जब और एम्प्टी रहे जब बहुत कम रहता है. d ऑर्बिटल D0 है या जब D10 होता है, इनका शील्डिंग इफेक्ट चले जाता है, क्योंकि D10 होने के बाद अब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल होना स्टार्ट हो जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है. तो शील्डिंग इफेक्ट कब कम रहता है, d एम्प्टी रहना है और या फिर d कम्प्लीटली फिल्ड रहना है. अब यहाँ पे d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो चुका है, शील्डिंग इफेक्ट कम होना है, ENC बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट कम है, तो यहाँ के जैसा बिहेवियर आना है. स्कैंडियम से क्रोमियम जैसा साइज कम हो गया था, क्रोमियम कॉपर से जिंक भी साइज कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम होना के बजाय या कांस्टेंट भी नहीं रह रहा है, इंस्टेड इट इज इंक्रीजिंग. द रीजन व्हाई इट इज इंक्रीजिंग इज इवन दो ENC इज इंक्रीजिंग, इवन दो शील्डिंग इफेक्ट इज वेरी पुअर, हालांकि ENC बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट कम है, साइज कम होने के बजाय यहाँ पे बढ़ रहा है. इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. द मेन रीजन इज atomic radii increases from copper to zinc due to electron electron repulsion. जब ये d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे हर एक ऑर्बिटल में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन रिपेल होते रहते हैं, अपने आप को जो है रिपेल करते हैं. रिपेल होने से ये दूर दूर जब होते हैं, दे ट्राई टू रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर, इससे इलेक्ट्रॉन का जो रीजन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बोलते हैं, ये एक्सपांड हो जाता है. व्हेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपांड्स, डेफिनेटली द साइज इंक्रीजेस, right? So
अगेन 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, वाई साइज इंक्रीजेस फ्रॉम कॉपर टू जिंक? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ electron electron repulsion in n-1 d orbital, which causes expansion of electron cloud and size increases. Remember, this is the variation of atomic radii in all the series, 3D ले लो या 4D या 5D या 6D, हर एक में इसी टाइप का वेरिएशन आता है. There will be first decrease, then remains constant, then increases. Decrease का reason, the size decreases due to increase in effective nuclear charge and very low shielding effect. Size remains almost constant due to increase in effective nuclear charge but balanced by increase in shielding effect, and size increases due to electron repulsion. लेकिन अगर आप इनका आयोनिक साइज देखेंगे, आयोनिक साइज देखते वक्त कंडीशन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कॉमन कंसिडर करना है, क्योंकि ये एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स में अलग अलग होते हैं. दे आर नॉट फिक्स्ड. डी ब्लॉक एलिमेंट्स की खासियत है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर इन सबका हम कॉमन जैसे कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे, तब क्या होता है, साइज डिक्रीजेस अक्रॉस द सीरीज. साइज डिक्रीजेस अक्रॉस द सीरीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन इस तरह है, लेकिन आयोनिक रेडियस का इट डिक्रीजेस अक्रॉस द सीरीज इन देयर सेम टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. सो ये यहाँ पे ग्राफ है, देख सकते हैं. ये 3D सीरीज है. स्कैंडियम से क्रोमियम तक साइज डिक्रीज होगा, क्रोमियम से कॉपर तक ऑलमोस्ट सेम, यू कैन ट्रीट देम. थोड़े बहुत 1 या 2 पिकोमीटर का वेरिएशन आता है, इट इज जनरली ट्रीटेड एज सेम. एंड फाइनली फ्रॉम कॉपर टू जिंक वी कैन सी देयर इज इंक्रीज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. अब 3D से ज़्यादा साइज 4D सीरीज एलिमेंट्स का होता है, क्योंकि आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं. डाउन द ग्रुप व्हेन यू गो, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एनर्जी लेवल्स. लेकिन 4D और 5D जब हम चेक करते हैं, when you talk about 4D and 5D series elements, we can see over here they are almost nearby to each other. हालांकि 5D लार्जर होना था 4D से, लेकिन दोनों के ग्राफ ऑलमोस्ट नियर बाय. इसका रीजन होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो हम F ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पढ़ेंगे. The reason why 4D and 5D series elements are almost same in their sizes due to their lanthanide contraction. What is this lanthanide contraction? It is decrease in atomic size of elements with increase in atomic number, or it is a decrease in atomic size of F block elements with increase in their atomic number. Atomic size of 14 elements in F block decreases between lanthanum and hafnium due to filling of 4f orbital, which shows very poor shielding effect. अब 4D जैसा लेते हैं हम, लैंथनम के बाद आता है हाफनियम. लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57, हाफनियम का है 72, यानी कि 58 सीरियम का होता है और 71 लुटेटियम, यानी कि ये एफ ब्लॉक में होते हैं. तो ये 58 से 71 तक जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स एफ ऑर्बिटल में जाते हैं, और एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम रहने से न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो सीरियम से लुटेटियम तक साइज स्लोली कम होते जाता है. इट गोज ऑन डिक्रीजेस बाय 1 और 2 पिकोमीटर्स, थोड़ा थोड़ा करके कम होते जाता है. जब ये लुटेटियम एटॉमिक नंबर 71 है, इसके बाद जब आप हाफनियम में आते हैं, ये हाफनियम है डी ब्लॉक में. जब आप हाफनियम को आते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 72, तो इसका साइज अब कम हो गया, क्योंकि ऑलरेडी एलिमेंट्स का साइज कम हो. यहाँ पे पहले कंटिन्यूएशन में था, दे वर ऑल इन कंटिन्यूएशन. यट्रियम के बाद जिरकोनियम, स्कैंडियम के बाद टिटानियम, लेकिन लैंथनम के बाद हाफनियम नहीं आता. लैंथनम के बाद सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम चला के आप लुटेटियम तक एफ ब्लॉक खत्म करते हैं, फिर आप हाफनियम को आते हैं. जब तक क्या हो जाएगा, साइज कम होते जाएगा. ऑलमोस्ट 14 एलिमेंट्स के बाद ये हाफनियम आता है, तो साइज कम हो जाता है, जिससे हाफनियम का साइज ऑलमोस्ट जिरकोनियम से मैच हो जाता है.
टैंटलम का साइज ऑलमोस्ट नियोबियम से मैच हो जाता है। ये एट्रियम और लैंथेनम का साइज डिफरेंट रहेगा, लेकिन जिरकोनियम और हाफनियम, यहाँ पे ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं जो एफ ब्लॉक के बाद स्टार्ट होते हैं, ये पूरे एलिमेंट्स 5D सीरीज के, ये 4D सीरीज के एलिमेंट्स के साथ इनका साइज मैच हो जाता है। और इसका रीजन क्या है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। Why lanthanide contraction takes place? It is nothing but decrease in the atomic size of 14 elements of F block, that is 14 elements of lanthanide series, where electron enters in 4f orbital, and due to its poor shielding effect, size decreases. And when you continue that elements in the D block, those size will be similar with the 4D series elements. इस lanthanide contraction के वजह से 4D और 5D series elements का size same हो जाता है। रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में बार बार। why 4D and 5D series elements are having almost same size? Reason will be due to lanthanide contraction. या फिर zirconium and hafnium is having same type of atomic radius or similar atomic radius. Why? आपको सिंपल रीजन देना है, ड्यू टू lanthanide contraction। और एफ ब्लॉक से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया है, व्हाट इज lanthanide contraction, what is its cause और what are its consequences। lanthanide contraction क्या है उसका डेफिनेशन लिखेंगे, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। कॉज क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्सिक्वेंस क्या है? 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स आर सिमिलर इन साइज। वैसे और दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हम एक्चुअली ये एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी इन ब्रीफ डिस्कशन हो गया। तो साइज सेम रहने की वजह क्या है यहाँ पर 4D और 5D का? ड्यू टू lanthanide contraction। अब ये साइजेस सिमिलर होने से क्या हो जाता है, इनके प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाते हैं, दे विल बी शोइंग सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। अब जैसे कि यहाँ पे 3D सीरीज की बात करेंगे, क्रोमियम से कॉपर ऑलमोस्ट साइज सेम है, तो साइज सेम रहने से इनके प्रॉपर्टीज सेम हो जाते हैं। या फिर एलॉय फॉर्मेशन बहुत इजी हो जाता है जब आप इनके एलॉयज बनाएंगे। एलॉयज बनाते वक्त दो टाइप के मैकेनिज्म आते हैं, सब्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म और इंटरस्टिशियल मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक एटम के एक एलिमेंट के एटम्स को दूसरे एलिमेंट के एटम्स डिस्प्लेस करते हैं, और वो डिस्प्लेस होने के लिए ज़रूरी क्या है? एटॉमिक साइज सेम रहना। तो आसानी से एलॉय, ये खासकर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एलॉयज इजीली फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर एटॉमिक साइज। नेक्स्ट आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो है एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा है और पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होती है, बिकॉज वी नो दैट आयोनाइजेशन एनर्जी decreases down the group and increases across the period. When we say increase across the period, it increases to D block and finally it increases till P block. So when you talk only about transition elements are having higher ionization energy than S block but lower than P block. लेकिन इंडिविजुअल सिर्फ ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे हर रेट, तो यहाँ पे भी थोड़े वेरिएशंस आते हैं। जनरल जब आप आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन बोलेंगे तब क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस इन ईच सीरीज। अब थोड़े वेरिएशंस भी आते हैं, थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में भी। उसके रीजन है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल और एक्सचेंज एनर्जी फैक्टर। Across a series, ionization energy increases with increase in atomic number but in an irregular manner. So irregularity is due to size, atomic size, presence of half filled or completely filled orbital and exchange energy. ये reasons के वजह से regularity नहीं रहेगी वेरिएशन में, irregular वे में ionization energy बढ़ते जाएगी। Ionization energy 1 is lowest compared to second and compared to third in 3D series elements. ये तो कॉमन है, हम हर एक एलिमेंट के लिए डिस्कस करते हैं। जब भी आप आयनाइजेशन एनर्जी लेते हैं, कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज गो ऑन इंक्रीजेस। तो 3D सीरीज में भी अगर आप इनके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज कंपेयर करेंगे, कोई भी एलिमेंट ले लो, स्कैंडियम तो ले लो या टिटानियम, कंपेयर करेंगे वैल्यूज, तो
स्कैंडियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम रहेगा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा, बाकी एलिमेंट्स का भी वही रहेगा। लेकिन जब हम इंडिविजुअल एक ही सीरीज में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी चेक करेंगे या सेकेंड या थर्ड, we can see that it generally increases with increase in atomic number. That is, when you move across from scandium to zinc, ionization energy increases. Reason: due to change in size, due to presence of half filled or completely filled orbitals, or due to exchange energy. अब यहाँ पे देख सकते हैं स्कैंडियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में उतने खास वेरिएशंस नहीं है, यानी कि वैल्यूज ज़्यादा उतना चेंज नहीं होते, नियरली वैल्यूज रहते हैं। इन जनरल आपको लेना है इट इंक्रीजेस अक्रॉस द सीरीज। जैसे कि लोवेस्ट होता है स्कैंडियम, इट इंक्रीजेस टिल टिटानियम। टिटानियम इज हैविंग स्लाइटली हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन वैनेडियम, देन वैनेडियम इज हैविंग लोअर देन क्रोमियम। क्योंकि क्रोमियम का यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटाल। तो ये मैं जो रेड मार्क में बताया हूँ ये पार्ट आपको याद रखना है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, chromium is having less than manganese, manganese is having less than iron, and iron is having greater than cobalt. यहाँ पे कोबाल्ट का ज़्यादा होना था लेकिन कोबाल्ट का आयनाइजेशन एनर्जी आयरन से कम है, देयर द फैक्टर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी विल कम। Same way when you go at the end, copper is having less than zinc because zinc is having completely filled d orbital stability as well as s orbital। क्योंकि आप जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3d और 4s। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स ये जो s2 है इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं, यू आर गोइंग टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द s ऑर्बिटल। तो s2 सब में है एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर जिसमें s1 आता है। तो s2 मीन्स completely filled orbital, that's why their ionization energy will be more। तो इस वजह से पीक्स जो आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के हाईएस्ट वैल्यूज जो आते हैं ये आता है क्रोमियम के तरफ, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा मैंगनीज से, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आयरन के पास आ रहा है। आयरन विल शो बिकॉज ऑफ मोर effective nuclear charge. Ionization energy of iron, first ionization energy is very high because of increase in or more E and C value. When you talk about second ionization energy में क्या हो जाएगा, सब में से एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, ये सब भी +1 स्टेट में रहेंगे और इनका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3d 4s1। सबका कॉन्फ़िगरेशन 3d 4s1 है बिकॉज ऑलरेडी दे हैव लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड यू आर गोइंग टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को अब रिमूव करने वाले हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी कैसे वेरी होती है देखना है। सबसे कम फिर से स्कैंडियम, इट इंक्रीजेस टू टिटानियम, अगेन इंक्रीजेस टू वैनेडियम, अब वैनेडियम का ज़्यादा हो गया, इट इंक्रीजेस टू क्रोमियम एंड क्रोमियम इज हैविंग मोर देन मैंगनीज नाउ। Why it is more? Because now chromium is having configuration as 3d5 4s0, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते वक्त क्रोमियम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था s ऑर्बिटल में जो आप निकाल दिए हैं। अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देखते वक्त सब में s1 आता है लेकिन क्रोमियम और कॉपर में s0 आता है बिकॉज ऑलरेडी दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन रिमूव। अब आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो s में से नहीं निकालेंगे, d में से निकालेंगे। अब d में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो d ऑर्बिटल के पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, it will not lose the electron easily, that's why it requires very high ionization energy, so it will be more than manganese, it will be more than manganese। Again manganese is having less than iron, now iron is having less than cobalt। यहाँ पे ENC और एक्सचेंज एनर्जी फैक्टर की वजह से आयरन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा था, अब आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गया क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s1 है, इट इज़ लेस। अगेन एट द एंड वी कैन सी जिंक का ज़्यादा होना था लेकिन अब जिंक का ज़्यादा नहीं है क्योंकि जिंक का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 4s1 लेकिन कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन अब रहेगा 3d10 4s0।
जैसा क्रोमियम का था, अब कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है, सिर्फ क्रोमियम में 3d5 था, कॉपर में 3d10 आएगा, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इसमें से बहुत डिफिकल्ट होता है, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। इट रिक्वायर्स वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन. So second ionization energy of copper is very high and it is more compared to zinc. थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि सब भी अगर दो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते वक्त भी वेरिएशन ऑलमोस्ट सेम है, इट इंक्रीजेस. नाउ मैंगनीज विल शो हाईएस्ट कंपेयर टू क्रोमियम एंड आयरन, क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन मैंगनीज से जाते हैं, अब मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन बनता है इस तरह. ये हो गया अब मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन, जो ऑलरेडी क्रोमियम का था सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम. अब वो कॉन्फ़िगरेशन किसका हो जाएगा, मैंगनीज का, क्योंकि एटॉमिक नंबर 25 है. जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे फर्स्ट और सेकेंड एनर्जी अप्लाई करने के बाद, ये बन जाता है एस में के दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3d5 रहेगा. अब थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव आपको d5 में से करना है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है. दैट्स वाई इट रिक्वायर्स मोर आयनाइजेशन एनर्जी. So again it increases till the end and finally we find zinc occupies the peak point. सबसे highest value zinc का होता है because now zinc gets this type of configuration. This is the configuration attained by zinc after loss of 2 electron. S में के 2 electron चले गए zinc के, अब zinc के पास 3d10 completely filled d orbital stability है. ऐसे कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है. यू रिक्वायर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. दैट्स व्हाई इट इज़ मोर कंपेयर टू कॉपर. रिमेंबर, ये दो कॉन्फ़िगरेशन, ये क्रोमियम का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होता है और कॉपर का इस तरह होता है. लेकिन जब आप थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंगनीज का है और ये कॉन्फ़िगरेशन जिंक का है. सो ओवरऑल रिमेंबर, in first ionization energy case, highest the ionization energy increases to maximum till iron, again it decreases till copper, again increases to zinc. Variation इस तरह है, याद रखो. It increases to iron, decreases, again increases to zinc. पीक्स आते हैं, आयरन के पास एक मेजर पीक आएगा और जिंक के पास. यहाँ पे भी है अप्स एंड डाउन्स, लेकिन निग्लेजिबल रहते हैं. मेन पीक्स आते हैं, आयरन विल बी हैविंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड फॉलोड एट द एंड इट विल बी जिंक. ये पॉइंट याद रखना है. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जब आप डिस्कस करते हैं, स्कैंडियम से क्रोमियम तक आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, फिर मैंगनीज को कम हो जाएगा, कम होते होते फिर यहाँ पे ये मैंगनीज का पीक हो गया. अगेन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, फिर जिंक के पास कम हो जाता है. तो इस पीक को मैं लिखता हूँ क्रोमियम. यहाँ पे ये मैंगनीज कम हो गया, अगेन इट इंक्रीजेस टू कॉपर एंड हियर इट डिक्रीजेस टू जिंक. और लास्ट केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे फिर से मैंगनीज आएगा और यहाँ पे आएगा जिंक. यहाँ पे जैसा हम फर्स्ट के लिए लिखे हैं, सिर्फ डिफरेंस ये है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आयरन टॉप पे रहता है, थर्ड में मैंगनीज टॉप पे रहता है. सो एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर तीन एलिमेंट का, ये जो मैं रेड मार्क से बताया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो आप, फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए और थर्ड के लिए. So this is the variation taking place in the 3D series elements with respect to their first ionization energy, second and third. Reason for all these variations, irregularities is their size, presence of half filled or completely filled orbital and exchange energy. पूरे अगर अलग अलग 3D 4D 5D सीरीज का डिस्कशन करते हैं,
तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D विल बी ग्रेटर दैन 4D, बट 4D इज हैविंग लेस दैन 5D। हालांकि 4D का ज़्यादा होना था, लेकिन 4D का कम हो जाता है 5D से, बिकॉज 5D एंड 4D आर almost similar in size due to lanthanide contraction, whereas effective nuclear charge will be dominant in 5D series. That's why the ionization energy will be more in case of 5D series elements. Reason you can give is lanthanide contraction. हालांकि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे पहले डिक्रीज होके फिर इंक्रीज हो रहा है। इसका रीजन देना है आपको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इस आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है वो आप पता कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल, निकल +2 स्टेट में स्टेबल होता है अगर आप प्लैटिनम 2, हालांकि निकल और प्लैटिनम सेम ग्रुप में आते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट निकल ग्रुप, you will find that they nickel and platinum belong to the same group, but nickel is more stable in +2 state, platinum is more stable in +4 state, even though they belong to the same group। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम ये सेम ग्रुप में आते हैं, फिर भी निकल की जब आप बात करते हैं तो +2 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहता है, प्लैटिनम की जब आप बात करते हैं तो +4 फॉर्म में स्टेबल रहता है। ये कैसा पता होता है? आप क्या करना है स्टेबिलिटी मालूम करने के लिए, निकल और प्लैटिनम +2 स्टेट में, यानी कि इनके फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऐड कर लेंगे। जब आप निकल के पहले 2 आयनाइजेशन एनर्जी ऐड करेंगे, प्लैटिनम के भी पहले फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऐड करेंगे, वैल्यू जो होता है निकल का कम रहता है, प्लैटिनम का ज़्यादा रहता है। जो वैल्यू कम है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। निकल के 2 आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यूज प्लैटिनम के 2 आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज से कम है, इस वजह से निकल +2 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जब आप निकल के 4 आयनाइजेशन एनर्जीज ऐड करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 4, उसी तरह प्लैटिनम के भी 4 ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे टोटली 4 आयनाइजेशन एनर्जीज का वैल्यू जो है निकल का ज़्यादा हो जाएगा, और टोटल 4 आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज प्लैटिनम का कम रहेगा। इससे ये मालूम होता है कि प्लैटिनम +4 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। So ionization energy will indicate the stability of a transition metal in a particular oxidation state. तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है उसको देखने के लिए आप उनका सम देखो, आप आयनाइजेशन एनर्जीज का एडिशन कर लो। वैल्यू अगर लो है इट विल बी मोर स्टेबल, अगर वैल्यू ज़्यादा है इट विल बी लेस स्टेबल। इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट stability of different elements in different oxidation states.